Good evening, everyone. It's pleasure to be here with you today from the team of India Mentors and talk on a very innovative and very topic of interest and importance while we talk of the COVID-19 and everybody is struggling to get the treatment for COVID-19. It's the right time to discuss this topic of homeopathic treatment during COVID-19. And we from India Mentors are hosting this as our part of the series of our webinars. And today we have a very eminent guest on our panel who shall be discussing the strength of homeopathy and its importance. And to tell you one thing is that there's so many things which are on the social media, on the TV channels, amongst your own groups, your peer groups, and this topic when we discuss, we will try to keep it as generic and kind of not discussing about the treatment and so that there's no dichotomy which is there when we talk of the treatment using homeopathic. And the eminent guests who are there with me are Dr. Yagya Valkaya and Dr. Anjali, who are kind of the known personality in the homeopathic treatment for so many years. And they have been treating different chronic diseases, different chronic problems over the years, and it will be our pleasure to hear from them. Just to introduce Dr. Yagya Valkaya, he studied on many subjects, majorly science, especially the Center of Mechanics, Mathematics, Psychology, Law, Homeopathic, and Jyotish. And with so much of experience behind him, he is being studying homeopathy for almost last 20 years. I think his inputs will be very valid for us. And he is the author of several books on law and jurisprudential philosophy. Dr. Saab, welcome to our panel today, and we look forward for having a very interesting discussion. And with us, we also have Dr. Anjali, who's been practicing homeopathy for last 15 years, and she's running a clinic on Aura Homeo Clinic, and she's also conducted various seminars on homeopathic treatment and to spread the knowledge of what's the latest development in homeopathy. So welcome Dr. Anjali as well. So before we start the panel discussion, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बारे में होम्योपैथिक की नॉलेज के बारे में आप लोग बताएं, so that you can introduce yourself. Dr. साहब आप पहले you can introduce and Dr. Anjali will introduce. Dr. Saab. Dr. Anjali, आप please बताइएगा. Good evening, everyone. Myself, Dr. Anjali, and I am a homeopathic physician running my own Aurora Homeo Clinic in Shipra Vista, Indrapura. I'm in this field from last 15 years. So today we all are here to discuss about the scope of homeopathy. Symptoms are very, very, very important. जब भी हम होम्योपैथी की बात करते हैं तो हम सिम्टम्स की बात करते हैं. कोई भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए हमें सिम्टम्स की जरूरत होती है, एंड ऑन दैट बेस, ऑन सिम्टम्स बेस, वी गिव द मेडिसिन, वी प्रिस्क्राइब द रेमेडी. So I think homeopathy has a great scope in each and every disease, in chronic diseases as well as in acute diseases. Thank you. Yeah. Dr. Yagya Valkaya ji. हाँ, नमस्कार. कर्नल साहब ने पहले ही बहुत कुछ बता दिया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है. मैं बहुत सारी चीजों के साथ, जिसमें से साइंस है, मैथमेटिक्स है, साइकोलॉजी है, लॉ है, इन सब के साथ साथ मैं होम्योपैथी का भी छात्र हूँ. पिछले लगभग 20 वर्षों से होम्योपैथी में काम कर रहा हूँ, और हम सब लोग वहाँ क्या सीखते हैं वही सब लेके आपकी सेवा में आए हैं. आगे बात को बढ़ाते हैं, तो यहाँ से हम अपनी राह देखेंगे. प्लीज करना. शुक्रिया डॉक्टर साहब.
डॉक्टर साहब, मैं आपसे वल्काया जी आपसे पहले पूछना चाहता हूं कि आजकल होम्योपैथिक को लेकर काफी चर्चाएं सुनने में आती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि होम्योपैथिक का मूल विचार, जो सेंट्रल थीम ऑफ होम्योपैथी, वो क्या है? जी, हम इसके ऊपर विचार करते हैं। कल साहब, पहले एक बात कि मेरा नाम याज्ञवल्क्य है, अगर मैं निवेदन कर सकूं तो ओके। याज्ञवल्क्य। दूसरी बिल्कुल जी, बात बिल्कुल, शुक्रिया। कि डॉक्टर हैनेमन हुए हैं, उन्होंने होम्योपैथी का मूल विचार दिया था। सन 1749 के आसपास आपको याद होगा, डॉक्टर एडवर्ड जेनर हुए थे, जिन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए एक वैक्सीन बनाई। और उसमें उनका प्रिंसिपल था कि अगर हम स्मॉल पॉक्स की एक बहुत छोटी सी खुराक को किसी व्यक्ति को दे दें, तो वो उस स्मॉल पॉक्स से दोबारा इन्फेक्टेड नहीं होगा। उसी समय डॉक्टर एडवर्ड जेनर वाज देयर इन 1749। उनके कुछ थोड़ा सा समय के बाद डॉक्टर हेनेमन हुए थे 1755 में। तो उन्होंने उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाया, and he took that principle of diluting the things to an extreme. बहुत दूर तक उन्होंने उसको किया, डाइल्यूट किया, और ये देखा कि जिस चीज से कोई बीमारी पैदा होती है, उस ही चीज से वो बीमारी दूर होती है। कुछ बच्चे थे जो एक तालाब में नहाते थे, सिंकोना के तालाब में, सिंकोना के फूल उसके ऊपर पड़ते थे, तो ये देखा गया कि उन बच्चों को बुखार होने लगा। तो डॉक्टर हेनेमन ने उस पानी को लिया, उसको डाइल्यूट किया और उन बच्चों को पिलाया, तो बुखार धीरे धीरे दूर हो गया। और इससे हमें एक सिंकोना ऑफिसरलिस नाम की दवाई हम आजकल इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली जो हमारी होम्योपैथी है, इसका मूल विचार है सिमिलीबस क्यूरेंटर, लाइक क्योर्स लाइक। जो जैसा सिम्टम है, जो एक सामान्य व्यक्ति में जो चीज जैसा सिम्टम पैदा करेगी, वही चीज एक रोगी व्यक्ति में उस सिम्टम को दूर करेगी। उदाहरण से हम एक समझते हैं, सपोज किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है, तो सांप काटने से जो जो लक्षण उस व्यक्ति में पैदा होंगे, उस सांप के जहर से जब हम दवाई तैयार करते हैं, तो वही वही लक्षण उस व्यक्ति में पैदा हो चुके हैं। तो उस जहर से तैयार दवाई उन लक्षणों को दूर कर देगी। असलियत में होम्योपैथी के अंदर कभी कोई बीमारी नाम की चीज नहीं होती, यहाँ एक कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स होता है, और हम हमेशा व्यक्ति के बारे में जानकारी रखते हैं, कभी किसी बीमारी के बारे में हमारा कोई खास अध्ययन नहीं होता। दूसरी बात यह है कि आजकल के वैज्ञानिकों ने होम्योपैथी के बारे में एक विशेष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। उनका कहना है कि होम्योपैथी अपने आप में एक साइंस नहीं है, वो इसको सूडो साइंस के नाम से जानते हैं। और उसका मुख्य कारण यह है कि यदि हम किसी सब्सटेंस को डाइल्यूट करना शुरू करें, कर्नल साहब, सपोज मैं एक चीज को डाइल्यूट करके उसका 10% एक टाइम में कर देता हूं, तो एक साइंटिफिक डेफिनेशन के मुताबिक उस चीज को हम 24 टाइम से ज्यादा कभी भी डाइल्यूट नहीं कर सकते हैं। इसको हम एवोगैड्रो लिमिट कहते हैं। एवोगैड्रो लिमिट होता है कि किसी भी सब्सटेंस को हम 10⁻⁻24 टाइम्स से ज्यादा नहीं छोटा कर सकते हैं। लेकिन होम्योपैथी में हम जो एक छोटी सी दवाई पोटेंसी 30 का इस्तेमाल करते हैं, उसको भी हम 60 टाइम्स डाइल्यूट करके तब हम उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर हम 200 पोटेंसी का इस्तेमाल करते हैं, तब हम उसको 400 टाइम्स डाइल्यूट कर चुके होते हैं। वी डाइल्यूट 2000 टाइम्स, 2 मिलियन टाइम्स। तो फॉर आवर प्रेजेंट डे अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस, दिस इज समथिंग बियॉन्ड एप्रीहेंशन, बियॉन्ड कॉम्प्रीहेंशन। They do not understand it, what does it mean? इसलिए उन्होंने इसे एक सूडो साइंस कहना शुरू किया। और बहुत सारे लोग हैं जो होम्योपैथी को सिर्फ इसलिए रिपुडिएट करते हैं कि होम्योपैथी वर्तमान अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस में नहीं आती। बिल्कुल जी। आप देखेंगे गैलीलियो गैलीली हुए हैं और उनके साथ में गिर्डानो ब्रूनो हुए हैं।
जिनको फिलिपो ब्रूनो भी कहते थे। तो जिस समय उन्होंने सबसे पहले प्रस्तुत किया कि सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड इट, दिस principle, this new thought, this new hypothesis was against the already existing principle of geocentric theory कि जमीन सारी दुनिया के सेंटर में। तो हुआ क्या कि ब्रूनो को तो उन्होंने जिंदा जला दिया था और गैलीलियो को उन्होंने सारी उम्र के लिए कैद कर दिया था, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया। तो जब किसी समय पर हम किसी नए सिद्धांत को नहीं समझ पाते हैं तो हम आमतौर से उसको क्रिटिसाइज करने लगते हैं। वही आजकल होम्योपैथी के साथ। तो होम्योपैथी मेरे नुक्ता नजर से, मेरी निगाह से एक साइंस ऑफ फ्यूचर है, जिसे शायद हम जाके आगे समझेंगे। अभी वर्तमान में जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है, मेजॉरिटी ऑफ सो कॉल्ड साइंटिस्ट हैं, दे कॉल इट ए सूडो साइंस। अदरवाइज दिस always believes in the wellness of a person. It does not classify them on the basis of their diseases. Diseases का इसमें कहीं कोई अर्थ नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। ये सिर्फ व्यक्तियों को देखता है, उनको उनके नेचुरल स्टेट में रिस्टोर करता है। क्योंकि देखने में आया कि कई से क्रॉनिक जो बीमारियां वो भी इससे ट्रीटमेंट हो जाती हैं और जो डिफाई करती हैं बाकी साइंस के रूल्स को। हाँ, उसका कारण यही है कि इसका ध्यान किसी बीमारी पे नहीं है, इसका ध्यान किसी बीमारी पे नहीं है। ये व्यक्ति को देखता है, ये उसके खाने के बारे में पूछता है, ये उसके पानी पीने के बारे में पूछता है, कितनी बार पीते हो, कितना ठंडा पीते हो। तो ये एक आदमी का पूरा पोर्ट्रेट तैयार करती है होम्योपैथी। वो पोर्ट्रेट में उसके फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं कि फिजिकल लेवल पे वो कैसा नजर आता है। हम उससे ये भी पूछते हैं कि उसको किस चीज से डर लगता है, उसको कैसे सपने आते हैं, माने कि हम उसका मेंटल पोर्ट्रेट भी तैयार करते हैं। हम उसको ये भी पूछते हैं कि आपको किन किन चीजों से अवर्जन होता है, क्या क्या आप ज्यादा करते हैं। तो हम उसके इमोशनल लेवल को भी चेक करते हैं। तो होम्योपैथी में किसी अगर आप कहें कि मुझे खांसी की दवाई दे दो, तो डॉक्टर अंजलि आपको एक सैकड़ों दवाइयां बताएंगे कि ये सब खांसी की दवाइयां हैं, लेकिन वो फिर आपको एग्जामिन करेंगे बाद में कि आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस कहाँ जा रही है, आपकी मेंटल पोर्ट्रेट क्या कहती है, आपका इमोशनल बैलेंस कहाँ है। इन सब चीजों को मिला के देन शी विल प्रिस्क्राइब ए पर्टिकुलर मेडिसिन। बिल्कुल, वो पर्टिकुलर मेडिसिन आपके सभी सिम्टम्स को रिलेट करेगी। तो इसमें जो सेंटर ऑफ फोकस है वो आपकी बीमारी नहीं है, इसमें सेंटर ऑफ फोकस आप होते हैं। समझिए। इसलिए क्योंकि व्यक्ति अगर आप देखेंगे तो अपनी इवोल्यूशन से जब वो शुरू में बना था तब से लेके आज तक व्यक्ति अंदर से वही का वही है। बाहर से जितना बदला है वो उसकी सिविलाइजेशनल वैल्यूज बदली हैं। सही बात। उसका गुर्दा आज भी वहीं पाया जाता है, उसका आमाशय स्टोमक आज भी वहीं पाया जाता है, उसका ब्रेन वहीं पाया जाता है। इंटरनली ही इज स्टिल देयर और वही का वही है जो पहले होता था। तो होम्योपैथी उसको अध्ययन करती है, उसका इलाज करती है, बीमारी से इसको कोई लेना देना। बहुत बढ़िया जी। मैं ये कहना चाहता था डॉक्टर अंजलि जी, होम्योपैथी अन्य दवा प्रणालियों जैसे एलोपैथी या आयुर्वेदिक मेडिसिन से वो उनसे कैसे अलग है? आपके व्यूज क्या है इसके ऊपर? देखिए, कोई भी मेडिकल सिस्टम जो होता है उसमें कॉज ऑफ द डिजीज, हम किस चीज को लेके चलते हैं कि कॉज ऑफ द डिजीज क्या है, दैट मैटर्स अ लॉट। उसी पे ही डिपेंडेंट होती है किसी भी मेडिकल सिस्टम का जो रेमेडीज होती हैं या जो वे ऑफ क्योर होता है। लाइक अगर हम एलोपैथी की बात करें, मॉडर्न साइंस की बात करें, तो उसमें दे टेक पैथोजेंस एज द कॉज ऑफ द डिजीज। वो ये मानकर चलते हैं कि अगर डिजीज आई है तो किसी पैथोजन ने उसको किया है। गोइंग ऑन सिचुएशन की अगर हम बात करें, जिसमें कोविड-19 की बात करें, तो उसमें भी वो कोरोना वायरस को टारगेट कर रहे हैं कि कोविड-19 कोरोना वायरस से हो रहा है। तो उनके अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस, इफ वी रिमूव द कॉज देन वी क्योर द पेशेंट। हम पैथोजन को हटा देंगे तो क्योर हो जाएगा।
इसीलिए एलोपैथिक मॉडर्न साइंसेस वो काम कर रही है वैक्सीन पे, मेडिसिन पे, जो कि पैथोजन को टारगेट करें, राइट। इसी तरह से अगर हम आयुर्वेदिक मेडिकल सिस्टम की बात करें, जो कि बहुत पुराना हमारा हीलिंग एक आर्ट ऑफ मेडिकल साइंस है, उसमें जो हम 3 दोष की बात करते हैं, वात, पित्त, कफ, उनका जो बैलेंस है, उन तीनों का जो आपस में बैलेंस है, उसको हेल्दी स्टेट लिया जाता है। और अगर उन तीनों का बैलेंस आपस में बिगड़ता है तो उसको हम डिजीज कहते हैं। तो उस मेडिकल सिस्टम में उन तीनों के बैलेंस को बनाने के लिए रेमेडी दी जाती है। ज्यादा डेप्थ में हम बात नहीं करेंगे कि क्या मेडिकल सिस्टम्स कितना किस तरह से वर्क कर रहा है, बट कमिंग टू होम्योपैथी, होम्योपैथी में एक हम बात करते हैं कि वी वर्क ऑन द मॉडल ऑफ वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स जो कि डायनामिक है नेचर में, राइट। हमारी जितनी भी बॉडी की सेंसेशंस हैं, हमारे फंक्शंस हैं, ईच एंड एवरी नक एंड कॉर्नर, उसमें वाइटल फोर्स वर्क कर रही है इन अ वेरी हार्मोनियस वे जब हम हेल्दी स्टेट में होते हैं। किसी भी रीजन से, वट एवर इज द रीजन, माइनर रीजन जैसे एकदम से कोल्ड एक्सपोजर हो गया, या फिर एकदम से सन एक्सपोजर हो गया, या फिर कोई भी मेजर रीजन, स्ट्रेस है, कोई भी लॉस है, कोई सडन एकदम अपसेट करने वाली न्यूज आती है, तो इन चीजों से हमारी जो वाइटल फोर्स है वो डिविएट होती है, एंड दैट डिविएशन, उसी से हमारे में सिम्टम्स डेवलप होते हैं। जो कि सिम्टम्स की बात मैंने स्टार्टिंग में ही बोली कि सिम्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सिस्टम ऑफ होम्योपैथी। डॉक्टर साहब ने भी बताया कि हम सिम्टम्स पे, जो एक पर्सन के सिम्टम्स हैं उस पे वर्क करते हैं। सो दैट मीन्स वो जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं वही हमें गाइड करते हैं कि हम एक मेडिसिन सिलेक्ट करें ऑन द बेसिस ऑफ दोज सिम्टम्स। हाँ जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपके व्यूज इस पे। हाँ, मैं कर्नल साहब इसमें एक छोटा सा ऐड करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह से बताया है। एक सिस्टम ऑफ कंपनसेशन होता है। System of compensation means your organism is lacking something and you have to compensate it from some outside source. जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि एलोपैथी believes on a pathogen theory that pathogen creates a pathology. कोई डेफिशिएंसी हो सकती है, क्वाशरकोर हो सकता है आपको उससे, और दुनिया भर की बीमारियां आपको हो सकती है। तो एलोपैथी क्या करती है कि वो आपको बाहर से सिंथेटिक सोर्सेस से वो आपको कंपनसेट करने की कोशिश करती है। आपकी बॉडी में साल्ट्स दिए जाते हैं, आपकी बॉडी में दवाइयां दी जाती हैं, और आपको उसे जो डेफिशिएंसी आपके शरीर में थी, या जो डेफिशिएंसी आपके पैथोजन ने क्रिएट की थी, उसको पूरा किया जाता है। यही कंपनसेशन हमारा आयुर्वेद भी करता है। आयुर्वेद उसको अपने नेचुरल सब्सटेंसेस की सहायता से करता है। वो बताता है इन दवाइयों को खाया जाए जो प्रकृति में पैदा होती हैं, इन फलों को खाया जाए, इन सब्जियों को खाया जाए, तो वो कंपनसेट वो भी करते हैं, लेकिन वो उसको नेचुरल सोर्सेज से करते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि हमारी यूनानी दवाइयां भी हैं। यूनानी दवाइयां भी नुस्खे जो उसमें होते हैं, वो अनेक तरह की बनफशा और ये सब चीजें इस्तेमाल करते हैं, तो उनको सुखा के इस्तेमाल करते हैं, काढ़ा बनाते हैं, तो वो भी कंपनसेट कर रहे हैं। चाइनीज सिस्टम में आप देखते हैं, दे यूज इवन ऑर्गन्स ऑफ द एनिमल्स, दे आर आल्सो कंपनसेटिंग। तो हमारे जितने मेजर सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैं, दे आर ऑल बेस्ड ऑन ए सिस्टम ऑफ कंपनसेशन। आपके शरीर में जो कमी हो गई है उसको कंपनसेट कर। अभी मैंने निवेदन किया पिछले सवाल में जब हम बात कर रहे थे कि हम होम्योपैथी में सब्सटेंसेस को इतना डाइल्यूट करते हैं कि साइंटिफिकली वो सब्सटेंस उसमें नहीं बाकी बचता है। मैंने कहा ना कि एक एवोगैड्रो नंबर होता है। हाँ जी, हम सिस्टमिक लेवल पे जाके उसको ट्रीटमेंट करते हैं। हाँ, नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा फिर दोबारा निवेदन करता हूँ। एक एवोगैड्रो नंबर होता है। एवोगैड्रो नंबर सेज कि इफ ए सिस्टम इज, इफ एन एलिमेंट इज ब्रोकन डाउन
to the level of 6.023 something 10 raised to power minus 24, then the substance will be eliminated from that. वहां कोई पदार्थ बाकी नहीं बचेगा. ये पदार्थ की सीमा है, आखिरी सीमा है. उससे छोटा कोई पदार्थ का टुकड़ा हो नहीं सकता 10 raised to power minus 24 से. लेकिन हम जो होम्योपैथी में इसको इस्तेमाल करते हैं, हम अगर 30 पोटेंसी को इस्तेमाल करते हैं, 30C पोटेंसी को, तो इसका मतलब है कि वी हैव डाइल्यूटेड इट अप टू ए लेवल ऑफ 10 raised to power minus 60. 200 पोटेंसी को तो वो -24 पे सब्सटेंस खत्म कर रहे हैं, एंड वी आर यूजिंग एंड क्रिएटिंग इफेक्ट्स एट ए लेवल ऑफ 10 raised to power minus 200, 10 raised to power minus 2000, 10 raised to power minus 2 million. तो हमारी विज्ञान की समझ में नहीं आ रहा है, फिलहाल जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी समझ में नहीं आता है कि क्या है. Some people say it is nano physics, but it is far beyond the nano levels. Nano level means 10 raised to power minus 9. At 10 raised to power minus 2000, no nano level is there. सही. तो हालांकि वो मेरा एक अलग से काम है, मैंने कहीं इस पे भी काम किया था कि ये जो हमारी चेतना और जड़ पदार्थ होते हैं, इसके बीच में होम्योपैथी कहीं एक तीसरा लेवल है. लेकिन उसको हम अपने फिर किसी दूसरे चैप्टर में या किसी दूसरे डिस्कशन में रखेंगे. हम कहते हैं जड़ पदार्थ हैं और हम कहते हैं कि चेतन पदार्थ हैं, चेतना है, हम जिंदा पदार्थ हैं. तो उनके बीच का एक लेवल होम्योपैथी है, जो शायद जड़ और चेतन के बीच में, तो हम उसे फिर किसी अगली डिस्कशन के लिए रखते हैं. लेकिन अभी मेरा कहने का मतलब ये है कि होम्योपैथी के माध्यम से जो दवाइयां हम लोग दे रहे हैं अपने जरूरी व्यक्तियों को, उनमें कहीं सब्सटेंस नहीं है, और अगर सब्सटेंस नहीं है तो कंपनसेट नहीं कर सकते आप. तो होम्योपैथी जो मेडिसिन्स हैं आर वर्किंग एट सम डिफरेंट लेवल. और ये क्या हो सकता है, साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स जानेंगे इसको, कि एक बहुत छोटा होता है जिसको क्वांटम फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, प्लैंक्स इंटरवल ऑफ टाइम एंड प्लैंक्स लेंथ, बहुत छोटे. तो मुझे लगता है कि किसी क्वांटम लेवल पे जाके काम करती है, और वहां सारा का सारा जो भी होता है इज ए गेम ऑफ एनर्जी. तो होम्योपैथी मेडिसिन आपको कहीं कंपनसेट नहीं करती है. इस लिहाज से ये दुनिया की सभी मेडिकल सिस्टम से बिल्कुल अलग है, उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है, एक अलग लेवल ऑफ थिंकिंग पे बात करती है. बिल्कुल. और डॉक्टर साहब, क्या ये होम्योपैथी का उपयोग सभी बीमारियों के लिए किया जा सकता है, या केवल बीमारियां जिनका मतलब लिमिटेड बीमारियों के लिए हम उपयोग कर पाएंगे? जी हाँ, इसमें अभी क्योंकि हम लोगों ने पहले भी जैसे अभी बात की है कि होम्योपैथी में बीमारी का कॉन्सेप्ट नहीं है. बीमारी का जो शब्द है डिजीज, ये डिजीज हमारे एलोपैथी सिस्टम में आया है, या रोग नाम का आयुर्वेद में आया है. वो लोग जो कंपनसेट करना चाहते हैं, जो उस रोग के जो जरूरियात हैं, जो कमियां हैं, उनको पूरा करना चाहते हैं, उन सिस्टम ने इसको रोग का नाम दिया है, डिजीज का नाम, बीमारियों का नाम दिया है. होम्योपैथी ऐसी चीजें नहीं कहती है. होम्योपैथी सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर ध्यान रखती है. वो आपके फिजिकल सिम्टम्स की बात करती है, वो आपके मेंटल लेवल की बात करती है, मेंटल चेंजेस की बात करती है, मेंटल डिस्टर्बेंसेस की बात करती है, वो आपके इमोशनल डिविएशंस की बात करती है. होम्योपैथी को देखिए, अब जैसे हम देखते हैं यहाँ पर आजकल, क्योंकि हमारा एक विषय आज कोविड-19 भी है, कोविड-19 के बारे में जो मोटे मोटे लक्षण अभी आए हैं, बाकी तो डॉक्टर साहब इसमें ज्यादा बताएंगे. अभी जो मोटे मोटे लक्षण आए हैं, वो उस मोटे मोटे लक्षणों के बारे में हम कहते हैं तेज बुखार होता है और खांसी होती है. उसके बाद जो उससे अगली अवस्था आती है, उसमें गला खराब हो जाता है, तीसरी अवस्था में जाके उसके लंग्स के ऊपर इफेक्ट आ जाता है. अब होम्योपैथी के लिए तेज बुखार और खांसी इज ए कॉम्बिनेशन. बिल्कुल. तो उसके लिए ये बिल्कुल नहीं है सोचना कि वो आप उसको कोविड कहते हैं, या आप उसको वायरल फीवर कहते हैं, या आप उसको किसी तीसरे नाम से जानते हैं. हो सकता है कि किसी लोकल भाषा में उसको तीसरे. तो वी डू नॉट बोदर अबाउट द नेम ऑफ द डिजीज.
what Right. they define disease in allopathy is a symptoms, collection of symptoms, है ना, Right. collection of sign and symptoms होते हैं, उसको वो एक डिजीज कह देते हैं। हमारे यहाँ होम्योपैथी में ये माना जाता है कि साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं वो व्यक्ति में पैदा होते हैं, कोई ऑब्जेक्टिव चीज नहीं है, और बिल्कुल। वो बीमारी आपको मेंटल लेवल पर भी प्रभावित करती है, वो आपको शारीरिक लेवल पर भी करती है, और वो आपको भावनात्मक लेवल पर भी करती है। तो जितनी गंभीर बीमारियां हैं, आप देखेंगे उन गंभीर बीमारियों के सामने सबसे पहले तो आप मानसिक रूप से पस्त हो जाते हैं, जिसे शायद डॉक्टर अंजलि डिप्रेशन के बारे में अभी बताने वाली हैं। डिप्रेशन के नाम से जानते हैं, हम लोगों के अंदर सेल्फ लूदिंग आ जाती है, आदमी आत्महत्या का विचार करने लगता है, या महिलाएं जैसे प्रसव के बाद में, प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद में वो लगातार एक ही पोजीशन में लेटी रहती हैं, तो उसमें उनके अंदर एक विशेष किस्म का हम थिंकिंग देखना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, वो डिप्रेशन के जैसा ही होता है। डॉक्टर साहब उसके बारे में अभी विस्तार से बताएंगे। हाँ जी। तो यहाँ होम्योपैथी में हम किसी बीमारी के बारे में नहीं कहेंगे, इवन आपके एड्स और HIV इन्फेक्शंस के बारे में भी होम्योपैथी के द्वारा अध्ययन किया गया है। कुछ ऐसी बीमारियां रही हैं, जैसे फ्रोजन शोल्डर के बारे में हम जानते हैं। फ्रोजन शोल्डर के बारे में एलोपैथी कहता है कि ये कभी उसको ठीक नहीं कर सकते। हाँ जी। लेकिन होम्योपैथी में फ्रोजन शोल्डर इज ए सिंपल प्रॉब्लम फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ योर लिम्बिक मसल्स। तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए हम मतलब होम्योपैथी से रिलेटेड नहीं होते हैं, हम सिर्फ ये देखते हैं कि व्यक्ति इस समय कैसा महसूस कर रहा है और उसका प्रभाव उसके शरीर पर, उसके मन पर, उसके भावों पर कहां तक पड़ चुका है। अगर ये चीज हमारी पकड़ में आ जाती है तो हम लोग शायद उसके बारे में एक दवाई तजवीज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर अंजलि, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि कोविड-19 के बारे में इतनी चर्चा हो रही है हर तरफ, तो आजकल जहाँ पे पूरा विश्व कोविड-19 के से जूझ रहा है और इंडिया में भी अभी जो नंबर्स हैं कुछ चंद एक दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और कोई दवाई अभी तक कोविड-19 की कोई ऐसी खोजी नहीं गई है, और जो भी है वो शायद जो बेसिक ट्रायल पर्पस के लिए हैं या अभी वो इजाज करने के मोड में है। सो क्या होम्योपैथिक इस हालात में कोई सहायता कर सकता है? यस, डेफिनेटली होम्योपैथिक बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करता है इन केसेस में, क्योंकि द मोमेंट पर्सन को सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा फीवर, कफ, वीकनेस लगती है उसको, और जो भी सिम्टम्स डेवलप हुए उसी टाइम पे वो एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट को कंसल्ट कर सकते हैं, होम्योपैथिक फिजिशियन से बात कर सकते हैं, अपने सिम्टम्स बताकर मेडिसिन ले सकते हैं। देखिए, जब सिम्टम्स डेवलप होंगे, अगर आप कोविड के लिए भी टेस्ट करवाते हैं तो वो टेस्ट रिपोर्ट भी आने में कुछ टाइम लेगी, लिमिटेड एक कुछ टाइम है जो वो रिपोर्ट आने में। इन द मीन टाइम हम तो उसी टाइम से ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं जबकि पेशेंट को लगे, पर्सन को लगे कि मेरे में एक सिम्टम डेवलप हो रहा है, राइट। उन सिम्टम्स को बताकर आप एक होम्योपैथिक मेडिसिन अगर शुरू कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप बिल्कुल आपकी हेल्थ रिस्टोर हो जाएगी और आप सिम्टम फ्री हो जाएंगे। ये तो एक बात है कि अगर सिम्टम्स आ रहे हैं, एक और भी इम्पोर्टेंट बात है कि इम्यूनिटी को भी बूस्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिम्टम आए तभी हम एक मेडिसिन को लें, एज अ पर्सन भी आप एक होम्योपैथिक फिजिशियन के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि पानी की प्यास किसी की कैसी है, या उसको सर्दी लगती है, ज्यादा गर्मी लगती है, इन बेसिस पे हम एक इम्यूनिटी बूस्टर भी पेशेंट को दे सकते हैं ताकि उसकी इम्यूनिटी जो है वो किसी भी आने वाली बीमारी से फाइट कर सके, राइट। अब इम्यूनिटी की बात करें तो आजकल कई होम्योपैथिक मेडिसिन जैसे आर्सेनिक है, कैम्फर है, आजकल बहुत नाम हम सुन रहे हैं, लोग उनको इम्यूनिटी बूस्टर की तरह लेते जा रहे हैं, राइट। बट एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि हर मेडिसिन जो है वो हर व्यक्ति के लिए नहीं है। होम्योपैथिक जो है एक टेलर मेड मेडिसिन है, मींस एवरी पर्सन इज डिफरेंट, हर पर्सन के सिम्टम्स डिफरेंट हैं, उनके अकॉर्डिंग ही जब मेडिसिन जाएगी तभी वो एक इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगी या तभी वो उसके क्योर का काम करेगी, राइट। एंड इसकी
अलावा अगर देखा जाए, अब इतने नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो अगर सारी मेडिकल सिस्टम्स मिलके इसको फाइट करेंगे तो आई थिंक जो हॉस्पिटल्स के ऊपर बढ़ता हुआ बर्डन है वो भी हम कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली इट विल बी कॉस्ट इफेक्टिव आल्सो। राइट। तो इसका मतलब कि जब माइल्ड एंड मॉडरेट इन्फेक्शन होता है तभी से हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देना शुरू कर सकते हैं, एंड अगर कोई, हाँ जी, और जब सिवियर इन्फेक्शन हो जाए और कई बारी जो पेशेंट है वो उसको ना पता चले माइल्ड इन्फेक्शन के टाइम पे, वो सिवियर स्टेट में जब आपके पास आता है, तो उस समय क्या आप उसको क्या मदद कर सकते हैं, क्या मेडिसिन उसको दे सकते हैं सो दैट ही रिकवर्स? देखिए, पहले तो हम बात करते हैं कि माइल्ड मॉडरेट सिम्टम्स हम कब कहते हैं। फीवर, कफ, उसके साथ कई बार स्मेल का भी लॉस हो जाता है, टेस्ट का लॉस होता है, और माइल्ड सिम्टम ऑफ निमोनिया जब तक है तब तक हम उसको माइल्ड टू मॉडरेट केसेस कहेंगे, राइट। जैसे ही ब्रेथलेसनेस होती है, नॉर्मली कहा जाता है, जैसे टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह में 50% से ज्यादा लंग्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, ब्रेथलेसनेस बहुत ज्यादा हो रही है, तब हम उसको मानते हैं कि केस जो है वो सिवियरिटी की तरफ जा रहा है। एंड क्रिटिकल डेफिनेटली जब रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, एकदम से बॉडी का पल्स गिरने लग जाती है, उसका जो रेस्पिरेटरी रेट है गिरने लग जाता है, सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन भी पेशेंट में आने लग जाती है, ड्राउजीनेस फील करता है, कोलैप्स स्टेज में भी जा सकता है, एंड मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की तरफ जाने लगते हैं, तब हम उस स्टेज को कहते हैं क्रिटिकल स्टेज। तो हम सबसे पहले माइल्ड टू मॉडरेट, जैसे आपने कहा कि मेडिसिन उसी टाइम पे, जैसे ही सिम्टम आते हैं हम उसी टाइम पे मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेडिसिन के नाम लेकर थोड़ा एग्जांपल देना चाहूंगी, ताकि एक पर्सन समझ सके कि क्या इंपॉर्टेंस है सिम्टम्स की होम्योपैथिक में, और हम क्यों बार बार ये एम्फेसाइज कर रहे हैं कि आप एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट से पूछकर ही मेडिसिन लीजिए। लाइक फीवर पेशेंट में आ रहा है, बॉडी एक आ रही है, इसके साथ साथ उसकी पानी की प्यास कैसी है, पानी की प्यास बहुत ज्यादा है उसमें, और पेशेंट बहुत ज्यादा इरिटेबल है, उसको बिल्कुल मन कर रहा है कि मैं बिल्कुल रेस्ट करूं, जरा सा भी हिलने डुलने पे उसको अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो आर इंडिकेटेड मेडिसिन इज ब्रायोनिया, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये ब्रायोनिया मेडिसिन जो होम्योपैथिक रेमेडी है उसमें पाए जाते हैं, तो वहां पे हम पेशेंट को ब्रायोनिया प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बट वहीं पे अगर पेशेंट को फीवर है, उसको कफ है, लेकिन साथ में उसमें रेस्टलेसनेस बहुत है, बहुत बेचैनी हो रही है, वो रेस्ट की पोजीशन में नहीं रह पा रहा, पानी पिया जा रहा है, मूवमेंट किया जा रहा है, आप उसको देखकर ही पता कर सकते हैं कि वो बहुत रेस्टलेस स्टेज में है, फुल ऑफ फियर, मतलब उसके फेस से फियर है कि अब पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, क्योंकि कोविड-19 जो है एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें वेरी फियरफुल। में हमारी कुछ और मेडिसिन है लाइक एकोनाइट, तो एकोनाइट उन सिम्टम्स को टेक केयर करती है। तो इस तरह से हमारे लिए सिम्टम्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिना सिम्टम्स के कभी भी हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम सीवियर केस की तरफ जाते हैं, अब ब्रेथलेसनेस शुरू हो गई है, खांसी शुरू हो गई है, जिसमें कि एकदम से पेन हो रहा है चेस्ट में, पेशेंट को अपना चेस्ट भी होल्ड करना पड़ता है, कई बार इतनी ज्यादा पेन होती है, तो वहां पे अगेन ब्रायोनिया कैन एक्ट, क्योंकि ब्रायोनिया में भी ये सिम्टम है कि पेशेंट को जरा से भी मूवमेंट, मींस खांसी हुई हल्की सी, बॉडी एकदम से हल्का सा भी मूवमेंट हुआ तो वहां पे उसको प्रॉब्लम होती है, एग्रावेशन होती है। तो जो मेडिसिन का स्फीयर ऑफ एक्शन है वो बहुत वास्ट है, वहां पे होम्योपैथिक फिजिशियन को देखना है कि उसको किस पोटेंसी में मेडिसिन देनी है, पेशेंट को किस पोटेंसी में मेडिसिन देंगे ताकि उसका जो सिम्टम है वो सबसाइड हो, उसकी जो हेल्थ है वो रिस्टोरेशन की, उसको रिस्टोर करे हेल्थ को। इसी तरह से अगर हम क्रिटिकल की तरफ चलते हैं, और मैं कुछ मेडिसिन, देखिए होम्योपैथिक में देयर आर एंडलेस नंबर ऑफ मेडिसिन, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आप फीवर और कफ का कॉम्बिनेशन बता देंगे तो आपको हम कई मेडिसिन के नाम बता सकते हैं, बट उनको हम स्पेसिफाई करते हैं। उसी तरह से कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो लंग्स के लोकेशन के ऊपर भी एक्ट करती हैं। अगर मान लीजिए किसी का लंग्स जो है राइट साइड का लंग इन्वॉल्वमेंट है ज्यादा, तो हम चेलिडोनियम लाइकोपोडियम की तरफ जाएंगे, अगर लेफ्ट साइडेड है तो हम नेट्रम सल्फ की तरफ जाएंगे। डिजीज प्रोग्रेस कर रही है, निमोनिया प्रोग्रेसिव होता जा रहा है, तो और मेडिसिन भी हैं।
लेकिन along with the symptoms of the person, उसके सिम्टम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। डिजीज के सिम्टम्स भी कंसीडर होते हैं, लेकिन प्रायोरिटी पे जो है वो सिम्टम ऑफ पेशेंट रहेंगे। अब मैं थोड़ी सी बात क्लिनिकल स्टेज की करना चाहूंगी। अगर पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर की तरफ जा रहा है, बॉडी एकदम से कोलैप्स स्टेज की तरफ जा रही है, पल्स जो है वो बिल्कुल आपको मालूम नहीं हो रही है, डाउन होती जा रही है, स्वेटिंग से एकदम से बॉडी भर रही है, तो उन केसेस में भी हमारी कुछ मेडिसिन हैं जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, जैसे कैम्फर, जो कि हम बहुत आजकल न्यूज में सुन रहे हैं, बहुत जगह पे सुन रहे हैं कि कैम्फर भी एक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह दी जा रही है। तो उस स्टेज में कैम्फर मेडिसिन जहाँ पे बहुत ज्यादा वीकनेस हो, वहां पे वो बहुत अच्छा काम कर सकती है। और बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है कि होम्योपैथिक मेडिसिन सिर्फ गोलियों ग्लोब्यूल्स के द्वारा नहीं दी जाती है। क्रिटिकल स्टेजेस में उनको आप स्निफ करके, उसको ऑल्फैक्शन मतलब नोज के जरिए स्मेल करके भी पेशेंट को दे सकते हैं। यहाँ तक कि पेशेंट के पाम्स, उसके सोल्स के बेस पे भी अगर हम उसको रब करेंगे तब भी वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होंगी। और नो डाउट अगर क्रिटिकल है पेशेंट, डेफिनेटली हॉस्पिटलाइजेशन होना जरूरी है, हॉस्पिटल में जाना जरूरी है, और अगर जो भी मैनेजमेंट की जरूरत है वो करनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, ओके, धन्यवाद। एंड डॉक्टर साहब, क्या कोरोना वायरस के टाइम पे होम्योपैथिक का उपयोग किया जा रहा है और इनका परिणाम कैसा रहा है आपके हिसाब से? इज इट सक्सेसफुल एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सक्सेस? इसमें कर्नल साहब, कोविड-19 एक स्पेशल केस रहा है, और इस दौरान हमने एक बीमारी के साथ साथ बीमारी के भय से भी हम लड़े। डर हम लोगों के बीच में ज्यादा रहा क्योंकि कोई वैक्सीन नहीं थी, इसके सिम्टम्स बहुत तेजी से फैल रहे थे, तो हमारा पूरा समाज एक भयभीत अवस्था में था। सरकारें भी हमारी समाज का ही हिस्सा होती हैं, तो जितनी सरकारों को मैं देखता हूँ पूरे वर्ल्ड लेवल पर, वो सभी की सभी भयभीत हो गई हैं। इसमें दो रास्ते संभव थे। एक तो ये कि हम लोग जो अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैं उनकी मार्फत, एलोपैथी की मार्फत हम लोग बहुत बड़े बड़े प्रयोग करते और नई दवाइयां निकालने की कोशिश करते। वो शायद हम लोग नहीं कर पाए हैं, वो चांस एक हमने कहीं मिस कर दिया है, और हम लोगों ने एलोपैथी का ज्यादा सहारा लिया है क्योंकि वो एक एस्टैब्लिश्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन है और वहां पर उनके पास बड़ा बजट है, बड़ा रिसर्च एंड एनालिसिस उनका रहता है। तो होम्योपैथी का योगदान, अच्छा, फिर कुछ दूसरा, सरकार की अपनी गाइडलाइंस आ गई थी कि यदि किसी व्यक्ति को कोरोना के सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो उसके साथ इस प्रकार से उपचार करना चाहिए। उस कारण से मुझे लगता है कि न सिर्फ होम्योपैथी बल्कि जो दूसरी हमारी अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैं, जैसे कि आयुर्वेद है या यूनानी मेडिसिन हैं या चाइनीज हैं, उन सब में भी कोई हम नया प्रयोग नहीं कर पाए। एक बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जगहों से ऐसी सूचनाएं प्राप्त हैं जहां होम्योपैथी को लेकर कुछ हमने प्रयोग किए हैं और उन प्रयोगों में सफलता मिली। पहला मेरे पास एक केस है जो भोपाल में एनडीटीवी खबर ने इसको प्रसारित किया था। भोपाल में 14 मई को 6 पेशेंट कोरोना के भर्ती हुए थे और उनको पूरी तरह से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दिया गया था, और इसमें 2 बच्चे भी शामिल थे, उनके माता पिता भी शामिल थे, और उसके बाद ये वहां से नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ये वहां से डिस्चार्ज किए गए और इनको फिर दोबारा कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं हुआ। इसमें लगभग उनको 10 दिन लगे। दूसरी मेरे पास एक आगरा से रिपोर्ट है। आगरा में नेमीनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है। वहां के एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार गुप्ता। उन्होंने भी कोविड-19 को लेकर कुछ मरीजों के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट किए हैं और उन्होंने भी उसमें बड़ी सफलता पाई है। उन्होंने जिला प्रशासन से भी इस बात की इजाजत मांगी थी, जो उन्हें मिली,
और भारत सरकार के साथ भी वो शायद किसी प्रकार से सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा अभी शायद बजाज ऑटो के एमडी साहब ने भी एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें एक बड़े जाने माने प्रतिष्ठित होम्योपैथ हैं डॉक्टर शंकरन राजन। डॉक्टर शंकरन राजन ने जो अभी डॉक्टर अंजलि ने दवाई बताई थी हमें, कैम्फोरा की दवाई को लेकर शायद 25,000 के आसपास शीशियां उन्होंने वितरित करवाई हैं समाज के अलग अलग लोगों में। ये काफी फेमस रही है मेडिसिन में कल जी, ये काफी फेमस रही है। इसके अलावा आयुष मंत्रालय ने भी आर्सेनिकम 30 का प्रयोग करवाया था। हालांकि बाद में आयुष मंत्रालय की तरफ से ऑन रिकॉर्ड ये कहा गया था कि ये हमने कोविड-19 के इलाज के रूप में नहीं, बल्कि आपकी भीतरी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए इनको वितरित किया था। तो हम ये देखते हैं कि अगर होम्योपैथी को इसका काम करने का अवसर दिया जाता तो हमारे पास इस बीमारी से संबंधित परिणामों के रिजल्ट कुछ दूसरे रहे हो। सही बात। होम्योपैथी के बारे में तो मैं इसके कोविड-19 के बारे में मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जिस समय हमारे यहाँ डेंगू फीवर फैला था, मैंने अपने पास पड़ोस में एक छोटी सी झुग्गी कॉलोनी थी, वहां उन लोगों में से 1500 घरों को चिन्हित करके वहां डेंगू फीवर की प्रिवेंशन की दवाई, प्रिवेंशन की, क्योर नहीं, प्रिवेंशन की दवाई मैंने उनको की थी। और कुछ लोगों की सहायता से मैंने जब वहां का फीडबैक लिया तो उन 1500 घरों में डेंगू का कोई भी मरीज नहीं था। ये अभी कुछ साल पहले की बात है, जब दिल्ली में डेंगू बहुत बड़े रूप में फैला था। तो हम लोग जब भी कोई बीमारियां आती हैं, एंडेमिक्स आती हैं, पेंडेमिक्स आती हैं, तो उनमें अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं और हमें उसकी इजाजत दी जानी चाहिए। लेकिन कई बार शायद परिस्थितियों को देखते हुए सरकारें उन एक्सपेरिमेंट्स का हम लोगों को इजाजत नहीं देती हैं और जो एक बेहतर परिणाम हम प्राप्त कर सकते थे वो परिणाम हम पाने से रह जाते हैं। तो लेकिन जहां तक जितना भी होम्योपैथी के बारे में मुझे फीडबैक्स मिला है वो यही है कि होम्योपैथी को जहां भी इस्तेमाल किया गया, इसने अपनी जगह पर पूरी तरह से इसने मतलब अपना रोल पूरी तरह से वहां भूमिका अदा की है और अच्छी तरह से इसने अपना काम। हाँ जी। और इसमें जब हम मेडिसिन लेते हैं, स्पेशली अभी कोविड-19 के टाइम पे, कोई आपके हिसाब से कोई सावधानी बरतनी चाहिए जो मेडिसिन लेते समय होम्योपैथिक की? देखिए, इसमें जो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन है वो सारा का सारा बेसिकली एक कम्युनिकेशन बिटवीन द पर्सन एंड द होम्योपैथ। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे होम्योपैथ हैं वो कोई एक प्रश्न, जो सटीक प्रश्न है, वो करने से रह जाते हैं, या कई बार हम प्रश्न कर देते हैं और जो व्यक्ति है वह जवाब नहीं देता जो सही है, कुछ और जवाब दे देता है सामाजिक कारणों से या व्यक्तिगत कारणों से। तो ये जो कम्युनिकेशन है एक पेशेंट में, शायद एलोपैथी का टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं, एक व्यक्ति और होम्योपैथ के बीच में जो कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन जिस समय अपने आप में पूरा हो जाएगा उस समय हमारी होम्योपैथी मेडिसिन अपने आप में बिल्कुल सही काम करेगी। कुछ परिस्थितियां जहां पर हम पाते हैं कि हमें बार बार होम्योपैथी मेडिसिन को देखना पड़ता है, तो वहां इस अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्युनिकेशन की ही प्रॉब्लम रहती है। या तो मैं वो बात समझ नहीं पाता हूँ जो पेशेंट मुझे कहना चाहता है। तो होम्योपैथी के साथ जो लगी हुई हमारी सावधानियां हैं, वो सावधानियां यही हैं कि जो एज ए पेशेंट जब आप बात कर रहे हो, तो जो आपकी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक दशाएं हैं, वो सारी दशाएं पूरी की पूरी तरह से होम्योपैथ को बताई जानी चाहिए। और होम्योपैथ को भी यही करना चाहिए कि जो उनकी दशाएं हैं आपके व्यक्ति की, उन दशाओं को वो ग्रहण करे, पूरी तरह से ग्रहण करे। रही बात परहेज की और इन सब चीजों की, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा आज तक, इतने दिन से मैंने होम्योपैथी का अध्ययन किया है, मैंने कभी किसी को आज तक कोई परहेज नहीं बताया। मुझे नहीं लगता कि किसी परहेज से कुछ होता है। वो आपके, क्योंकि यहाँ को भी कंट्रोल करती है होम्योपैथी, तो वो अपने आप परहेज करा लेती है
वो खाने की आपकी वैसी रुचि और दशाएं हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर अंजलि, आपके क्या विचार हैं इनके? सेम थिंग जो मैं डॉक्टर साहब को पूछ रहा था कि क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, कैसे मेडिसिन को लेना चाहिए कोविड-19 के टाइम पे? देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी सिम्टम्स हैं, आपने मेडिसिन ली, अगर आपको फिर भी फील होता है कोई सिम्टम नया आया है या आपको कुछ भी जो क्लैरिटी चाहिए है, तो आप अपने फिजिशियन से बात जरूर कीजिए ताकि वो और अच्छे से आपके केस को समझ पाए। सेकेंडली, जो जनरल हमारी प्रिकॉशंस हैं वही रहती हैं, लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स लेने चाहिए, पूरी अच्छी तरह से रेस्ट लेना चाहिए। इसके अलावा जैसे पहले सोचा जाता था कि होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, फूड आइटम्स की काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। द पर्सन कैन टेक व्हाटएवर ही वांट्स टू ईट। ठंडा वगैरह जो मेडिसिन जो इस डिजीज में नहीं लेना है, डेफिनेटली अवॉइड दैट, बट बाकी आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसे डाइटरी रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी हम जब कोविड की बात कर रहे हैं, एक सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आता है, काफी लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं और एंजाइटी बहुत ज्यादा हो रही है एंड लोगों को जो काम करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सामान्य जीवन जो है बहुत बिल्कुल हिला हुआ है। और जो मानसिक समस्याएं हैं उनको ओवरकम करने के लिए जो होम्योपैथी है वो कैसे उपयोग कर सकते हैं, उसको कैसे लोग बेनिफिट ले सकते हैं, स्पेशली डिप्रेशन की जो प्रॉब्लम है लोगों की? राइट। जैसे हाँ डॉक्टर अंजलि, आप बताएं प्लीज। आप जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी की अगर हम बात करते हैं, तो हमारी रूटीन लाइफस्टाइल भी अगर देखी जाए, दैट इज फुल ऑफ वरीज, स्ट्रेस, बहुत ज्यादा फियर रहता है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहती है। और इस सिचुएशन में तो खासकर जैसे कोविड-19 के साथ फियर जो है वो बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है। हर कोई घबराया हुआ है क्योंकि एक डर है, हेल्थ का डर है और अपने लव्ड वंस को खोने का डर है, या फिर कई लोग जो हैं वो उनकी जॉब्स जा रही हैं, उनका डर है। तो कई तरह की जो इस टाइम पे परेशानियां हैं वो चल रही हैं। और सबसे बड़ी जो इस टाइम पे परेशानी आ रही है वो है आप इमोशंस को, अपनी बातों को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक जो सोशल डिस्टेंसिंग हम कहते हैं कि अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस में। तो जो इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना है, वो भी एक तरह का उन इमोशंस को सप्रेस करना ही है। तो जब कोई चीज स्ट्रेस होती है, इमोशंस स्ट्रेस होते हैं, तो डेफिनेटली वहां पे डिप्रेशन, एंजाइटी की ये जो सब डिसऑर्डर्स हैं, ये सब प्रॉब्लम्स हैं, वो डेफिनेटली आती हैं। और होम्योपैथिक जो है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, क्योंकि हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि हम हर पर्सन की जब केस लेते हैं तो उसका एक हम मेंटल पोर्ट्रेट भी साथ में लेते हैं। फिजिकल पोर्ट्रेट के साथ साथ मेंटल पोर्ट्रेट भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या फील होता है उनको, या फिर वो क्या महसूस करते हैं, किस तरह का डर है उनको। सिचुएशन तो देखिए सबके लिए एक जैसी चल रही है, जैसे कोविड-19 की जो सिचुएशन है, पर उसमें कॉज तो सेम है, पर हर व्यक्ति उसको एक डिफरेंट एस्पेक्ट से ले रहा है। जैसे कि कुछ लोग उसको बहुत ज्यादा नेगेटिवली ले रहे हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग फील कर रहे हैं। कई लोगों में बहुत ज्यादा दुख जो है, ग्रीफ जो बहुत ज्यादा कलेक्ट होता जा रहा है। कुछ लोगों की बात करें तो उनमें डर का जो फैक्टर है वो बहुत ज्यादा है। और अगर हम कुछ लोगों की बात करें तो उनमें एंगर का फैक्टर, जॉब लॉस हो रहे हैं या फिर रूटीन नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। तो ये इफेक्ट है वो हर पर्सन में डिफरेंट लेवल पे आता है। तो उस इफेक्ट को भी देखना कि किस में किस तरह का इफेक्ट आ रहा है, वो भी हमें केस टेकिंग में देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके ऊपर भी हमारी मेडिसिन डिपेंड होती हैं। ग्रीफ की है अगर वहाँ पे, तो हम मेडिसिन का जो हमारा जो मेडिसिन की सिलेक्शन है वो एक अलग पैरामीटर पे जाएगी। अगर एंगर है तो अलग पैरामीटर पे जाएगा। तो सारी जो केस हिस्ट्री है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ईच एंड एवरी पर्सन। एक पूरा पोर्ट्रेट बनने के बाद जो एक इंडिकेटेड मेडिसिन है, दैट विल डेफिनेटली एक्ट एंड दैट विल डेफिनेटली प्रोवाइड कंफर्ट टू द पर्सन। हाँ जी डॉक्टर। और डॉक्टर, हाँ जी डॉक्टर साहब, आपके व्यूज क्या है इनके ऊपर? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कर्नल साहब कि कोई भी बीमारी या कोई भी लक्षण अपने आप में अकेला नहीं आता है। जब आपका डिप्रेशन होगा तो वो आपके शरीर पे भी कुछ
प्रभाव डालेगा, वो आपके मन पर भी कुछ प्रभाव डालेगा, वो आपकी भावनाओं पर भी कुछ प्रभाव डालेगा। मैं इसको एक उदाहरण के साथ समझ कर देखता हूँ। मान लीजिए हम किसी व्यक्ति के अंदर राइट साइडेड न्यूरालजिया, यहाँ पर दर्द आंख में या माइग्रेन हमको राइट साइड में हो गया है, तो हमें देखना पड़ेगा कि उस व्यक्ति के शारीरिक लक्षण क्या हैं, क्योंकि राइट साइडेड माइग्रेन अकेला नहीं हम समझ पाएंगे कि ये क्या है। हम उसे शारीरिक लक्षण देखेंगे, हम उसके मानसिक लक्षण देखेंगे, हम उसके भावनात्मक लक्षण देखेंगे। हम देखेंगे कि यदि वो बहुत मीठी चीजें खाता है, यदि उसको ऊंचाई से डर लगता है, यदि उसके गले से एक बलगम निकल कर आता है, थिक म्यूकस वहां से निकल कर आता है, या उसकी नाक स्मेल को लेकर बहुत सेंसिटिव हो गई है, तो हम उसे अर्जेंटम नाइट्रिकम देंगे, है ना, क्योंकि हमने उसके लक्षण देखे हैं कि उसके शरीर पर क्या है, मन पर क्या है, भावनाओं पर क्या है। लेकिन जब हम देखेंगे कि उसका ये जो राइट साइडेड न्यूरालजिया है या माइग्रेन है, इसमें वो चरपरी चीजें खाने को मन कर रहा है, उसके शरीर के दूसरे जोड़ों में भी दर्द है, छोटे छोटे जो दूसरे दर्द हैं, या उसके गले में सूखापन आ गया है, या उसकी नाक रुक गई है, तो हम उसको सैंग्विनेरिया देंगे। तो किसी भी सिम्टम को देखने के लिए हम अकेले सिम्टम को नहीं देखेंगे, चाहे वो भावनात्मक हो या मानसिक हो या शारीरिक हो, हम उसे टोटालिटी में देखेंगे। इसीलिए हम होम्योपैथी को एक ह्यूरिस्टिक साइंस कहते हैं, संपूर्णता वाली साइंस। इसमें किसी एक चीज का एकांगी अध्ययन नहीं किया जाता है, सर्वांगीण अध्ययन करेंगे, हर चीज को उसके पूरे परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। बिल्कुल जी, परफेक्ट। और यहाँ पे मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जैसे होम्योपैथिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, और और होम्योपैथिक ऐसी ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी है, प्रणाली है, जो आने वाले समय में बहुत ही प्रॉमिसिंग है एलोपैथिक और आयुर्वेदिक के हिसाब से या यूनानी के हिसाब से। सो आपको होम्योपैथिक का भविष्य कैसे आगे लगता है, कैसे आगे जाके चीजें होंगी? और जो कोविड जैसी प्रॉब्लम्स आई उनको ट्रीटमेंट करने में आपने बहुत एक इन डेप्थ विजन दिया, पर आने वाले भविष्य आपको कैसे लगता है कि इसका होम्योपैथिक करेगा? इसमें कर्नल साहब मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा लंबा जुड़ाव रहा है होम्योपैथी से, और अध्ययन किया मैंने, लोगों का देखा, उनसे मिला, कि वर्तमान में होम्योपैथी को सिर्फ दो प्रकार के लोग प्रयोग करते हैं। एक वो जो इसके सस्ते होने के कारण इसको अपनाते हैं, और दूसरे वो जो ये जान गए हैं कि दूसरी मेडिसिनल सिस्टम्स उनके साथ क्या कर रहे हैं और होम्योपैथी उनको उन दुष्प्रभावों से कैसे बचाती है। माने वो लोग जो आर्थिक कारणों से यहाँ आते हैं, और वो लोग जो यहाँ बौद्धिक कारणों से आते हैं। ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है, ये बहुत सस्ता सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। एलोपैथी का मुझे लगता है कि शायद 10वें हिस्से में इसका काम चल जाता है, जितना खर्चा हमें किसी चीज को ठीक करने के लिए करना पड़ता है। तो इसको गरीबों की दवाई भी कहा जाता है। मैं अपने दवाखाने में एक निश्चित समय और निश्चित परिमाण में दवाइयां रखता हूं, जिसके लिए मैं कभी किसी से कोई पैसा नहीं लेता हूं। तो वहां पर वो लोग आते हैं उस प्रकार के जिन्हें आवश्यकता होती है और वो पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारे लोग उसमें उस तरह के आते हैं। वो लोग भी आते हैं जिनको क्रोनिक प्रॉब्लम्स होती है। दूसरे लोग वो होते हैं जो ये जानते हैं कि जब हम बाहर से, जो हमने अभी सिस्टम ऑफ कंपनसेशन की बात की थी, प्रिंसिपल ऑफ कंपनसेशन की बात की थी, कि जब हम बाहर से फॉरेन एलिमेंट्स को बॉडी के अंदर डालते हैं, सपोज एक, और वो हमारे लिए क्या क्या मुश्किलें पैदा करता है। देखिएगा, मान लीजिए हमारे शरीर में एक सॉल्ट एक्स नहीं बन पा रहा है, या इंसुलिन नहीं बन पा रहा है, हम डायबिटीज की बात करते हैं, हमने बाहर से इंसुलिन डाला और शरीर ने उससे काम करना शुरू कर दिया, तो शरीर को कभी ये पता लगेगा ही नहीं कि उसके अंदर एक प्रॉब्लम है और वो इंसुलिन तैयार नहीं कर पा रहा। बाहर का जो सिस्टम ऑफ कंपनसेशन वाले मेडिसिनल सिस्टम्स हैं, वो बाहर से उसको इंसुलिन या इंसुलिन जैसी चीजें देते रहेंगे और शरीर बिना इंसुलिन पैदा किए ही जीवन भर चलता रहेगा। होम्योपैथी ऐसा नहीं करती। होम्योपैथी कहती है नहीं,
हम आपको बाहर से कुछ कंपेंसेट नहीं करेंगे, हम आपके उन ऊर्जा केंद्रों को उत्तेजित करेंगे जिनसे आपके शरीर में इंसुलिन बनना शुरू हो जाए। Okay. ये बहुत कुछ योग जैसी चीज है, क्योंकि योग में वो आपके शरीर में वैसे वैसे पोस्चर्स और आसन करवाते हैं जिससे आपका शरीर इंसुलिन को पैदा करना शुरू कर देता है। हाँ जी। ये योग जैसा शारीरिक पोस्चर नहीं देता है, लेकिन फिर भी उस तरह की एक एनर्जी सप्लाई करता है, क्योंकि सब्सटेंस से सप्लाई नहीं करता है, ये एनर्जी सप्लाई करता है, राइट। जिससे आपके शरीर की बंद पड़े हुए जो एनर्जी चैनल्स हैं वो खुलने लगते हैं और आपका शरीर अपनी स्वाभाविक गति से फिर काम करता है। तो मुझे लगता है कि भविष्य इसी प्रकार की चिकित्सा पद्धति का है। कुछ समय लगेगा, और ये जैसे मैंने अभी पहले भी निवेदन किया था कि होम्योपैथी इज ए साइंस ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर विल नो द वैल्यू ऑफ होम्योपैथी। बिल्कुल परफेक्ट। एंड डॉक्टर अंजलि, आपके व्यूज क्या हैं कि होम्योपैथिक भविष्य में किस प्रकार आप देखते हैं? होम्योपैथी ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की है ओवर द इयर्स, और इसका बहुत वाइड स्कोप है फ्यूचर में भी। काफी लोग ये समझ गए हैं, जैसे साइड इफेक्ट्स ऑफ मॉडर्न मेडिसिन से जब उनको साइड इफेक्ट्स की समझ आ गई है तो दे आर ऑप्टिंग होम्योपैथिक मेडिसिन। क्रॉनिक केसेस, चाहे हम स्किन प्रॉब्लम्स कहें, हेयर प्रॉब्लम्स कहें, या फिर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कहें, यू नेम एनी डिजीज, उसमें होम्योपैथिक का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। क्रॉनिक डिजीजेस में तो लोग ये मानते ही थे कि होम्योपैथिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट अब वो ये भी समझ रहे हो कि एक्यूट प्रॉब्लम्स में भी, जैसे डायरिया है, फीवर है, कफ है, उसमें भी होम्योपैथिक बहुत इफेक्टिवली काम करती है, बहुत जल्दी से रिलीफ दिलवाती है। तो इसलिए आप वो ओवर टाइम एक्यूट प्रॉब्लम्स के लिए भी होम्योपैथिक को ऑप्ट करते जा रहे हैं। एंड तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। साइड इफेक्ट्स नहीं है जो हम कहते हैं, दैट इज जब आप एक डॉक्टर की अंडर ऑब्जर्वेशन मेडिसिन ले रहे हैं। बट अगर आप कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की गाइडलाइंस के लेते जा रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपको कहीं ना कहीं हार्म जरूर पहुंचाएगी, चाहे वो होम्योपैथिक मेडिसिन ही क्यों ना हो। लेकिन अदरवाइज वेरी सेफ एंड वेरी सूदिंग मेडिसिन जो कि क्रॉनिक और एक्यूट दोनों में ही बहुत इफेक्टिवली काम करती है। परफेक्ट, धन्यवाद। एंड अभी कुछ क्वेश्चंस हमारे को चैट विंडो में डाले थे, आई विल टेक दोस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आर देयर एनी सिम्टम्स ऑफ कोविड-19 डिफरेंट इन चिल्ड्रन देन इन एडल्ट्स? बच्चों में और जो बड़ों में जो कोविड-19 के सिम्टम्स हैं वो अलग होते हैं कि सेम सिम्टम्स होते हैं? ये प्रश्न किनसे है, डॉक्टर अंजलि से या मुझसे? आप एनीवन, आप कोई भी यू कैन आंसर। अभी डॉक्टर साहब हमारी एक जो एलोपैथिक वे ऑफ थिंकिंग है उससे ये सवाल निकल जाता है। हम बच्चों में क्या सिम्टम्स हैं इस बात को जनरलाइज नहीं कर सकते होम्योपैथी के नुक्ता नजर से। बड़ों में क्या सिम्टम्स हैं इस बात को जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। वी आर कंसर्न विद द पर्सन हु इज सिटिंग जस्ट नेक्स्ट टू अस। जो हमारे सामने बैठा है, हो सकता है कि एक बच्चे में कोई दूसरा लक्षण पैदा हुआ, दूसरे बच्चे में कोई दूसरा लक्षण पैदा हुआ हो। तो एक होम्योपैथ के रूप में हमारा जो पूरा ध्यान होता है वो उस व्यक्ति पर होता है जो सामने बैठा हुआ है। तो किसी भी लक्षण का या सिम्टम का हम इसमें जनरलाइजेशन करने में एक बड़ी मुश्किल महसूस करते हैं। जो हमने अभी और डॉक्टर अंजलि ने भी बात की थी कि बुखार और खांसी वाली या चेस्ट प्रॉब्लम वाली, वो ये है कि बहुत लोगों को बहुत प्रकार से हो रही है। लेकिन किसको, अब जैसे चेस्ट में प्रॉब्लम है तो किस लोगों को वो दिन में सुबह 3 बजे के आसपास होती है, किसको दिन में 11 बजे के आसपास होती है, इससे दोनों की मेडिसिन बदल जाएंगी। किस व्यक्ति को वो तेज बुखार के साथ होती है, किस व्यक्ति को वो धीमे बुखार के साथ होती है, इससे मेडिसिन बदल जाएंगी। तो हमारे पास होम्योपैथी में हम हर एक सिस्टम को, हर एक सिम्टम को बहुत बारीकी से अध्ययन करते हैं और वो व्यक्ति विशेष का होता है, किसी भी क्लास का सिम्टम नहीं होता। ना बच्चे का होगा ना बड़े का होगा, वो उस व्यक्ति का होगा जो आपके सामने बैठे। परफेक्ट। दूसरा क्वेश्चन है, प्लीज गाइड हाउ टू इम्प्रूव SpO2 लेवल ऑफ ए लेडी हु इज 75 years old and is a COPD patient and
is dependent on allopathic medicine. So वो SPO level 2 कैसे improve कर सकते हैं? उनकी मदर है मेरे ख्याल 75 years एज की हैं और वो एलोपैथिक पे पूरी डिपेंडेंट है इस समय. See again, So डॉक्टर अंजलि, I think यहाँ पे भी हम यही बात कहेंगे कि सिर्फ ये 2 चीजें पता होने से हम मेडिसिन नहीं बता सकते हैं. पूरी की पूरा जो उनके सिम्टम्स हैं, जब आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर से बात करेंगे तो वो उनके और सिम्टम्स लेंगे जिससे कि एक इंडिकेटेड मेडिसिन हम बता पाएंगे. बट जस्ट कि एक SpO2 लेवल बढ़ाने के लिए कोई मेडिसिन है तो ऐसा नहीं होता. अगर उनके और सिम्टम्स हैं तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं ताकि हम एक मेडिसिन उनको बता सकें. बट वो बहुत डिटेल में एक डिस्कशन होना चाहिए कि उनको क्या फील हो रहा है. ओके. एक क्वेश्चन है जो क्या होम्योपैथिक डिसेंट्री, कब्ज, माइग्रेन एंड पाइल्स जैसी बीमारी का इलाज कर सकती है? सो एनी ऑफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. हाँ, ये तो एक सामान्य दैनिक जीवन की समस्याएं हैं आपकी, और इनके बारे में तो आजकल कुछ ऐसे भी हैं जो डॉक्टर अंजलि अपने वहाँ क्लिनिक में संभवतः एक स्टैंडर्डाइज्ड मेडिसिन के रूप में भी, डिफॉल्ट मेडिसिन के रूप में भी उसको दे रहे होंगे. ये बहुत नियमित सी हो चुकी हैं कि पथरी हो तो क्या होता है या डायसेंट्री हो तो क्या होता है, वो सारी की सारी चीजें हैं. लेकिन फिर भी वही मेरा कहना होगा कि सही बात जानने के लिए उस व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति इन चीजों से ग्रसित है, उस व्यक्ति को होम्योपैथ के पास बैठना होगा. वो होम्योपैथ उनसे सवाल पूछेंगे. सवालों में उनके जो शारीरिक लक्षण हैं, उनको भूख कैसी लगती है, सोते कैसे हैं, कितनी देर सोते हैं, क्या खाना अच्छा लगता है, क्या खाना बुरा लगता है, कितना पानी पीते हैं, कितना खाना खाते हैं, किस वक्त पे खाते हैं, भूख कैसी लगती है, ये सारी चीजों का एक पोर्ट्रेट तैयार करते हैं. इसी तरह से उनको किन चीजों से डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है कि अंधेरे से डर लगता है कि बंद कमरे से डर लगता है कि भीड़ से डर लगता है कि खड़े होने से डर लगता है, उन सब चीजों का लक्षण तैयार करेंगे. वो फिर पूछेंगे कि आपके घर वालों से आपको बहुत प्रेम महसूस होता है कि नहीं होता है, या परिवार से आपको दूरी महसूस होती है. डॉक्टर अंजलि देख रहे हो, सिपिया के लिए मैं बता रहा हूँ. तो इस तरह की दवाइयों के लक्षण भी हम सब चीजों को देखने के बाद, हाँ, ऐसी कोई शारीरिक अवस्था नहीं है जिसके विषय में होम्योपैथी के पास कोई उपचार नहीं है. तो हम किसी भी शारीरिक अवस्था का उपचार कर सकते हैं, लेकिन उस अवस्था से पहले हमें उस पेशेंट को या उस व्यक्ति को जिसे प्रॉब्लम है, उसके साथ बैठना होगा, लंबे सवाल जवाब करने होंगे. होम्योपैथी के बारे में लोगों को ये प्रॉब्लम आमतौर से रहती है कि साहब आप पूछते बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास जांच करने के वो तरीके नहीं है जो एलोपैथ्स के पास हैं. हमारे पास सोनोग्राफी नहीं होती है, हमारे पास अल्ट्रासाउंड नहीं होते हैं, हमारे पास एक्सरे नहीं होते हैं. हम सब सिर्फ आपकी बातों से, आपकी रुचियों से, आपकी अभिरुचियों से, आपकी घृणाओं से, आपके डर से, आपके भय से, आपकी पसंद से, आपकी नापसंद से, इन्हीं चीजों से आपका एक पोर्ट्रेट तैयार करते हैं, और उस पोर्ट्रेट के आधार पे आपकी दवाई हम फिर निकाल पाते हैं. क्योंकि इन्हीं का एक और क्वेश्चन आगे है कि इन्होंने 2 साल से वो मेडिसिन ले रहे हैं होम्योपैथिक की, पर उनको कोई सकारात्मक कोई भी ऐसा कोई अभी सोल्यूशन मिला नहीं है उनको, और इसका क्या कारण हो सकता है? उनको कोई मतलब रिलीफ नहीं मिली होम्योपैथिक मेडिसिन से. तो अगर आप उनको एडवाइस कर, शायद उनका सबसे बड़ा कारण वही रहा होगा, गैप ऑफ कम्युनिकेशन. गैप ऑफ कम्युनिकेशन, या तो उनके डॉक्टर उनसे वो सवाल पूछ नहीं पा रहे होंगे जो सवाल पूछा जाना चाहिए, और या वो उस सवाल का वो जवाब नहीं दे पा रहे होंगे अपने व्यक्तिगत कारणों से, मानसिक कारणों से या पारिवारिक कारणों से, जो जवाब दिया जाना चाहिए. अब देखिए, उदाहरण के लिए जब हम सल्फर की दवाई लेते हैं तो आमतौर से एक होम्योपैथ आमतौर से उससे जाते ही पूछते हैं कि आपको नहाते वक्त कैसा लगता है, क्या आप नहाना पसंद करते हैं? और लोग बाग इसका उत्तर देते समय अपनी मानसिक अभिरुचि के अलावा वो ऐसे जवाब देने लगते हैं जो हमारे स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म ऑफ हाइजीन से संबंधित होते हैं. वो कहते हैं नहीं साहब, नहाना तो मैं बहुत पसंद करता हूं. हालांकि मैंने देखा कि वो ऐसा नहीं करते हैं, वो नहाने से बचते हैं. तो हम ऐसे पेशेंट्स को
उसकी प्रवृत्तियों को ढूंढते हैं, जो प्रवृत्तियां सामान्य से अलग हैं, वो हमें उस दवाई की तरफ ले जाते हैं। बिल्कुल जी। तो एक शायद क्वेश्चन इनके आया जो है कि हैं होम्योपैथ, उनके साथ कहीं इनका कम्युनिकेशन गैप थोड़ा सा रहा होगा। बिल्कुल जी। I think this question is very valid and he would be able to take corrective action. एक क्वेश्चन है कि how can we save our 4 to 12 year kid in this COVID situation? जो बच्चे छोटे हैं 4 साल से 12 साल के, उनको हम कैसे सेव गार्ड कर सकते हैं कोविड की सिचुएशन में? देखिए, पहले तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज है, जितनी भी प्रिकॉशंस हम कहते हैं वो लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, बाहर निकलने पे मास्क डालना, हैंड वॉशिंग, ये सब प्रिकॉशंस लेनी बहुत जरूरी हैं ताकि हम इसे टू सम एक्सटेंट प्रिवेंट कर सकें। बट सबसे इम्पोर्टेंट है इम्यूनिटी को बूस्ट करना। तो जो 4 से 12 साल के बच्चे हैं या फिर बाकी सब की भी हम बात करते हैं, तो वो अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, अपने सिम्टम्स के बारे में बता सकते हैं। सिम्टम्स इन द सेंस कि जो डॉक्टर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। सिम्टम्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बीमारी हुई जो सिम्टम्स आए, पानी की प्यास कैसी है या उनका एक जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, व्यक्ति देखने में कैसा लगता है, तो इसके ऊपर एक होम्योपैथिक मेडिसिन डॉक्टर जो है वो उनको एक इम्यूनिटी बूस्टर जो एक पर्टिकुलर पेशेंट के लिए इंडिकेटेड है वो दे सकता है, जिससे कि वो काफी हद तक इस प्रॉब्लम से बच पाएंगे। तो एक इम्यूनिटी बूस्टर लेना बहुत जरूरी है एक होम्योपैथिक डॉक्टर से। हाँ जी। और एक क्वेश्चन ये है कि कोई साइड इफेक्ट्स हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के? कर्नल साहब, मुझे ऐसा लगता है कोई भी चीज अगर आप देखें और वो इफेक्ट पैदा करती है तो निश्चित रूप से साइड इफेक्ट्स भी पैदा करेगी। हालांकि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये शायद बहुत दरिया दिल वाली स्टेटमेंट है और ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति जिसे सल्फर की जरूरत नहीं है और अगर आप उसे सल्फर खिलाते रहें तो आप देखेंगे कि उसके शरीर पर वही सल्फर वाले स्किन में उसकी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, उसको सोराइसिस हो जाएगा और उसको अनेक किस्म की व्याधियां पैदा हो जाएंगी, उसको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो होम्योपैथी के भी एक आध खुराक लेने से कोई ऐसी बात नहीं है, आपका शरीर उसको मैनेज कर सकता है। लेकिन अगर आप होम्योपैथी दवाइयों का बिना जानकारी के लंबे समय तक उपयोग करेंगे तो वो आपके शरीर के साथ जो आपका एक संतुलन होता है उसको बिगाड़ता है और आपके शरीर पर उसी प्रकार के दुष्प्रभाव पैदा होने लगेंगे जैसे बीमारियों से पैदा होते हैं। बिल्कुल जी। Definitely. So these are the questions which were there, and बहुत धन्यवाद डॉक्टर वल्काया जी एंड डॉक्टर अंजलि जी। इट वाज रियली वंडरफुल डिस्कशन आज, और जो ऐसे पॉइंट के ऊपर हमने डिस्कस किया जो हर व्यक्ति की लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट है, कोविड-19 और स्पेशली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो एक बहुत प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट मॉडल है, और आपने बहुत ही अच्छी इंसाइट्स दी इसके बारे में। और मेरे हिसाब से जो जिन्होंने अटेंड किया उनको एक बहुत ही नॉलेज मिली इस सब्जेक्ट की, कैसे उनको होम्योपैथिक यूटिलाइज करके ट्रीटमेंट करना है। और काफी सारे बाकी जो क्वेश्चंस हैं दे कैन कम टू यू ऑफलाइन, एंड इट्स रियली अ प्लेजर टू होस्ट यू बोथ हियर। धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल टू अटेंड दिस वेबिनार, एंड बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब एंड डॉक्टर अंजलि। थैंक यू। शुक्रिया। गुड इवनिंग एंड बाय बाय।